Determine acceleration of the car. That's the first question, students. Okay. The second one is distance traveled by the car in 8 seconds. Distance traveled by the car in time 8 seconds. The second question. And the third is distance traveled by the car in 8 seconds. Distance traveled by the car in 8 seconds of its motion. Is these three questions clear to all of you all? Yeah, three questions clear, students? Yes, sir. I want all of you all to solve and get me the answer, students, fast. Students, now please be serious and do it as fast as possible, okay? Kashish, where are you? Kashish, are you there? Yes, sir. कहाँ थे तुम? फिर घर पे पहुंच गए थे सही तरीके से? सर मैं नहीं आई थी ना आज. You sorry, you didn't come. You didn't come. Oh, very sorry. Very sorry. Very sorry. Somebody else had turned up. सर मैं आई थी बट केमिस्ट्री वाले दिन आई थी. Okay, fine. अभी solve करो. Okay, please do it fast. Okay. Who is this Avinash Kate 11th H division? ये कौन है? सर अविनाश सर. हाँ? अविनाश सर IITian हब. ये 11th H division क्यों लिखा है? मैं तो अभी उनको निकालने वाला था. या तो किसी के उनके नाम से किसी ने एंट्री किया होगा तो वो भी हो सकता है. That's why I told them to reply. अगर reply नहीं आएगा तो हमको to remove it. See, अभी देखो है students, देखो नहीं है ना students, देखो participants सर में लीव नहीं कर है. दिया सर. लीव कर दिया. हाँ तो वही हाँ मैंने उनको सर. text भेजा. मैंने उनको टेक्स्ट पूछा कि रिप्लाई करो, तो अगर वो सर होते तो रिप्लाई करते ना मुझे. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. अगर मैंने उनको बोला रिप्लाई करने के लिए, ये सर होते तो रिप्लाई करते या माइक भी ऑन करके उनका, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तुरंत निकल गए. यानी somebody had सर entered उसने with ऑडियो भी false. कनेक्ट नहीं किया था अपना. हाँ इसलिए somebody had entered with false name. स्टूडेंट्स कोई false name से अंदर घुस गया था. ये होता है. बी विजिलेंट स्टूडेंट्स. तुम्हें ऐसा कोई दिखाई दे ना, ऐसा कोई एलिमेंट तुम्हारे ग्रुप के अंदर अगर दिखाई दे तो तुरंत सर को बोल देना, कशिश एंड यू ऑल, ओके? सीधा बोल देना कि somebody is not there. ये कोई unknown person आ गया है. Okay, come on, solve fast, please, students, everyone. Labdi, are you there, Labdi? Yes, sir. Okay, I thought so that you have gone to sleep. Kashish says you have gone to sleep. Find out the acceleration. Find out the distance covered in time 8 seconds and displacement during 8 seconds of its motion. Fast. Yes, anybody? Kashish is giving the answer. Okay, the first answer is correct. Others?
Come on, Shyam. Labdi. Labdi also is correct. Both these girls are racing, huh, students? Come on, guys. What about y'all? All the boys inside the classroom. Very good, Shyam. Absolutely correct. Labdi ने दूसरा आंसर भी दे दिया. Very good, Labdi. Labdi is racing ahead. Yes, come on for the last answer. Anybody? Very good, Labdi. Labdi has completed all of the answers. Labdi, can you unmute and come on, tell me how to do it fast? Bolo. First answer कैसे निकालोगे? What's the formula? First वाला a plus u plus 80. So that is A is equal to B minus U upon T, isn't it? Yep. That's 42 minus 0 upon time 8. So you'll get the answer for the first one. Yeah, 5.25. Okay, 5.25, she got it. Very correct. Okay, now what exactly to find out distance during 8 seconds? Second one is ut plus s is Sir, plus half a. क्या हो गया? Who's there? Ut plus half 80 square. Okay. Now, That is 0 into 8 plus half into 5.25 into 8 square. very good. See, love, this so smart. So what exactly the answer for displacement covered is? 168 meter. Okay, now displacement during 8 seconds of its motion. Formula? सर अभी जो फॉर्मूला दिया उससे किया s into nth second is equal to u plus a n minus 1/2. Very good. N minus half. Okay, what's the initial velocity? 0. Acceleration, what is given to us? 5.25. How much is n you'll take it as? 8. 8. 8 seconds of its motion. Very good. तो क्या final answer होगा तुम्हारा? 39.375 meter. क्या बात है कशिश, लब्धि आंसर दे रही है, देखा कितना स्मार्ट है ना कशिश? Can I erase this, students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? Yes, sir. Okay. Can I erase, students, all of you all? The next question, students. Labdi says, yeah. Okay, students. The next question which I'm trying to put for across, listen carefully, students. ये भी ध्यान से सुनो, please pay attention, students. Okay. A particle है which starts from rest, students. A particle which is starting from rest, u is equal to 0, students. Okay. A particle starting from rest and under uniform acceleration.
Okay, it's moving under uniform acceleration. अभी तुम्हें पता होना चाहिए what do you mean by uniform acceleration. Okay, कोई बता सकते हो what exactly you mean by the term uniform acceleration, students? Students, what exactly uniform acceleration means? Anybody? A particle is moving with uniform acceleration. उसका मतलब क्या? Fast. Motion of body in straight line with uniform velocity. Sorry, Uniform- acceleration. क्या बोल रहे हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोल रहे हो? Acceleration. तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? Sir, एक ही Sir, I know the meaning, but I don't know how to explain it. क्या, what is the meaning? बोलो श्याम. Sir, that's what I'm saying. I don't know how to explain it. Okay, fine. Who else is ready to answer? Labdi, सर एक ही स्पीड से बढ़ता है. क्या बोल रहे हो? एक ही स्पीड से बढ़ रहा है कोई बॉडी. इट्स लाइक. हाँ, absolutely correct. तो उसी को इंग्लिश में बोलो. When a body covers equal change in velocity in an equal interval of time. आया ना? लब्दी. सर अच्छा, मुझे बताओ लब्दी, मुझे बताओ, मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बताना है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा? ध्यान से सुनना लब्दी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे आता है? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव होता है तो कैन यू टेल मी हाउ विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट एंड हाउ विल बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? चलो, कोई भी बता सकता है? एनी ऑफ यू ऑल? will it be straight line? This will be straight line. I guess. What you said it, that the body is gaining velocity, na? There is change in velocity and that is equal. अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? स्टूडेंट्स, तुम मुझे डरा रहे हो. हाँ, सच्ची में बोल रहा हूँ, तुम सारे मुझे डरा रहे हो. लब्दी, रियली, तुम मुझे मिलो लब्दी. मीट मी एट टीपी भाटे नाउ. मीट मी एट टीपी भाटे. जस्ट वही होगा ना. इट्स लाइक फ्रॉम रेस्ट टू स्ट्रेट लाइन. वही. which one? Velocity one you're saying it? हाँ. तो कहाँ से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से शुरू होता है और ऐसा है ग्राफ. हाँ. तो बराबर बोलो ना. तो बोला. नहीं, तुमने ऐसे नहीं बोला. तुमने बोला कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्या? इट इज एट एन एंगल ऑफ 45 विद एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये देखो ना, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. लगती तुम्हें आता है, फिर भी तुम सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो. बस वो बात है. See students, she said a correct answer. Equal change in velocity in an equal interval of time. That is called as what? This is we consider as for uniform acceleration. चलो, अगर इसका मैंने स्लोप पूछा स्टूडेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्टूडेंट्स, इसका स्लोप क्या होगा? चलो मुझे बता सकते हो? स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? एनीवन? 45. क्या बोल रहे हो? What is the slope of this graph? y2, y1, x2, x1. So what is the slope? White. What is the slope of this graph? Velocity and time. y2 minus y1 by x2 minus x1. That means Y2. change in velocity upon change in time. है ना? Yes, sir. तो वो क्या बन जाएगा? Acceleration. And this is called as which acceleration? Uniform acceleration. Students, uniform acceleration का मतलब क्या? Acceleration constant रहता है. Acceleration ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है. तो अगर किसी ने पूछा plot the graph of uniform acceleration by showing acceleration time graph, तो एकदम straight away horizontal line बना दो, खत्म होगी बात. लेकिन ये ग्राफ कहाँ से आएगा? अगर तुम velocity time graph बनाओगे तो ऐसा आता है ये. अभी देखो, what is the definition of uniform acceleration?
Uniform acceleration is defined as for a body covering equal change in velocity, or a body having equal change in velocity in an equal interval of time, then the body is said to move with uniform acceleration. क्या ये clear हुआ students आपको? Students क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. I don't know क्यों तुम लोग भूल रहे हो. I'm really feeling it bad यार. ये तुम लोग बहुत यश वगैरह यार. Why are you forgetting like that? क्यों ऐसे भूल रहे हो तुम लोग? एक थोड़ा सा ब्रेक क्या हो गया लेक्चर्स के बीच में. हाँ स्टूडेंट्स, वी आर इंटरेक्टिंग आफ्टर लॉन्गर टाइम इट सीम्स, है ना थोड़ा सा. इज इट? हाँ स्टूडेंट्स, शायद थोड़ा सा गैप बढ़ गया लेक्चर्स के बीच में. तो सी यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट थिंग्स. और ये मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ये बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ऐसा मत करो. और इसके बारे में अगर ग्राफिकल के बारे में बताना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है? The graph of velocity time graph for uniform acceleration is a straight line passing through origin at an angle of 45 degrees with the time axis. देखो कितना sweetly, passing through origin at an angle of 45 degrees with a time axis. अगर मैं ऐसे बता दूं और फिर मैंने बोलो बच्चे लोग चलो ड्रॉ द डायग्राम, तो सारे यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अगर मैंने बोला कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हेलो, अगर मैंने सीधा रैंडमली बोल दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन. तो उसको उसको डिफाइन करना चाहिए ना अच्छी तरह से. लब्धि क्लियर हुआ अभी क्या बोल रहा था मैं? हाँ सर, हाँ सर. ओके, तुम मिल मेरे को, मिल टीवी बैठे में मिलो थोड़ा सा. ओके okay, now the question is, students, answer the students please. The question I'm speaking about is, consider body is initially at rest and it's going with uniform acceleration, students. The body covers a distance x. It covers a distance x in time t seconds. Okay. Find the distance it will cover. Find the distance it will cover in the next t second. Find the distance it will cover. Okay, find the distance it will cover in the next t second. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? सर, बहुत कंफ्यूजिंग है. क्या बोल रहे हो? बहुत कंफ्यूजिंग है. आप क्या क्वेश्चन है? हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन. हाँ. लवली, ये क्वेश्चन फिजिक्स से ज्यादा इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है. रीड द इंग्लिश, read the English correctly, read between the lines properly, you'll get the answer. I repeat, the question is, a body whose initial velocity, the body starts from rest and it moves with uniform acceleration. The distance covered by the body is x in time t seconds. Find the distance covered in the next t second. ये तुम्हारा इंग्लिश है. पूरा सोल्यूशन इसके अंदर डिपेंडेंट है. जो बंदा ये समझ गया वो क्रैक कर सकेगा. यानी स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बी गुड इन फिजिक्स, यू शुड बी स्लाइटली बी गुड इन इंग्लिश आल्सो. समझ में आया लवती? अगर डिस्टेंस डबल होगा तो टाइम भी डबल ही होगा ना?
मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं आता है. I'm not your physics teacher now. I've given you to solve. I'm your Marathi teacher now. Marathi teacher. I don't know anything about this. I explained you this much. Now you have to get the answer. बहुत शांति से सोचो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओके चलो, shall I solve it for you all students? सॉल्व करो. Yes, sir. Please solve. ओके श्याम, अभी देखो ध्यान से सुनना. नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. अगर तुम ध्यान से रीड करोगे तो ये है क्या आंसर क्वेश्चन. डिस्टेंस कवर पहले केस में x n टाइम t सेकंड्स, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन ध्रुव. ओके तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन कौन सा तुम्हें हाथ में आएगा सर? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो अगर मैं पहला कंडीशन लेता हूं तो तुम्हारा डिस्टेंस इज x, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a t स्क्वायर. तो तुम्हारा ये पहला इक्वेशन तो ये होगा. क्या ये क्लियर हुआ? डिस्टेंस इज x इन टाइम t. हाँ स्टूडेंट्स. हाँ सर. Now suppose if I say let the additional distance, the answer सुनना, let the additional distance dy, यानी x के साथ में अगर तुमने एडिशनल डिस्टेंस y ऐड किया, कभी होगा ये? इन नेक्स्ट t सेकेंड्स. इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है. मैं इक्वेशन ये नहीं लेना स्टूडेंट्स. अभी मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस y. एग्रीड? But now I'm taking the additional distance. तो क्या होगा सर? It is half a. What is a new time? What is a new time? Next t seconds, यानी t plus t. तो can I say that becomes 2t? क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ. तो now can I say half into a into 2t the whole square? तो ये आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आंसर होगा 2 into a into t square. Can I say this is my equation number 2? Agreed? Yes, sir. So my first equation is x is equal to half a t square. Second equation is x plus y is equal to 2a t square. Question क्या पूछा? What is the question asked is? Find the distance covered in the next t seconds. Students, यानी तुम्हें y की वैल्यू पूछी है. किसकी वैल्यू पूछी है? Only y. Only y. तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो कोई भी स्टूडेंट जो वाइज होगा और स्मार्ट होगा वो करेगा सर आपको पहला इक्वेशन ये मिला है. Dividing equation 2 by 1. वेरी गुड. ये कशिश क्या करती है मालूम है? लेक्चर से बाहर जाती है, वापस आती है, बाहर जाती है, वापस आती है. म्यूजिकल नहीं चेयर. सर, फोन कॉल आ जा रहा है तो मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ ना, और वो बार बार फोन कॉल किए जा रहे हैं. क्यों? कौन कर रहा है तुम्हें? कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें? सर मेरी मासी है. हाँ मासी है मेरी. अरे उनको बोलो नहीं ऐसा मत करो, सर भड़क रहे हैं, मेरे को निकाल देंगे लेक्चर में से. अभी अभी एक दफे तुम वापस बाहर गए ना तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा. ओके ओके x सर. प्लस वाई. हमको बोल दो अभी ऐसा मत करो. अपॉन x. सो x प्लस वाई अपॉन x. तो ये क्या होगा? 2a t स्क्वायर अपॉन half a t square. Now can I have cancellation? Yes, you have cancellation. Can I say this becomes 4 upon 1? Can I cross multiply and get the answer? Students, can I cross multiply and get the answer? 4 into x will be 4x is equal to x plus y. Therefore, can I say y is equal to 3x? That's your answer. So in additional time t, what is the distance covered additional? 3x. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Lavdi, now is it clear? थोड़ा क्लियर हुआ. हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ सर, थोड़ा क्लियर हुआ. नहीं थोड़ा क्लियर नहीं, पूरा क्लियर चाहिए. क्या क्या कंफ्यूजन अभी बताओ. अभी क्या कंफ्यूजन है बताओ. सर डिवाइड क्यों किया?
अरे क्योंकि मुझे एडिशनल डिस्टेंस चाहिए था। देखो ना क्या पूछा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स। यानी कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस तुमने कवर किया। एक्स्ट्रा डिस्टेंस यानी क्या हुआ, एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्टेंस y था ना। अभी मुझे चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो तुम y कैसे निकालता है? सर निकाल सकते हैं ना तो y इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर माइनस x आता। सर, लेकिन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, हम लोग को मिली है हाफ तो x वही स्क्वायर वाली। हुआ ना, तुम x की वैल्यू जो पहले मिले वो सब्स्टिट्यूट करो या डिवाइड करो, एक ही हुआ। वही कर रहे हो तुम। सर वही डाउट अभी पता चल रहा है। मैथ्स में रेशियो लो या सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर तो वही आएगा ना। अगर मैंने x को यहाँ पे ले लिया, x को यहाँ पे ले लिया, तो सबट्रैक्ट करो ना। You consider in this case the 2a square 2at square, you can say minus half at square in that case. 2 minus half कितना हो जाएगा, 3/2. Solving it, you'll get your answer accordingly. तुम्हें वही आंसर मिलेगा। इसके बाद वाला मैथ्स है श्याम, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ओके। मैथ्स मैथ्स तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारे पे है। रेशियो लो या सब्स्टिट्यूट करो, या मैं x प्लस वाई को लेता हूँ और दूसरा x है, इसमें से इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। x प्लस वाई में से x को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, वो भी मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं। मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं x प्लस वाई में से x, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, मुझे मिल सकता है आंसर, क्यों नहीं मिलेगा। Are you getting it? यस सर, अंडरस्टूड। Can I erase the students? Students, क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? हाँ सर। Okay. Dhruv says erase it. Okay, students. Now let us go for certain questions, students. Please pay attention. Okay. Now we go for one of the questions, students. It's given on page number 56. Okay, the in chapter exercise, unsolved problems. Do you all have your module in front of you, students? सबके पास module है? Yes, sir. यस सर। Okay. So page number 56, please, students. I wanted to solve these particular questions right now. Solve question number 6, question number 7, and question number 8 right now. Everybody. Question number 6, question number 7, and question number 8. And get me correct in the first attempt. One who finishes first will raise his hands. Come on, fast. 6th, 7th, and 8th.
A race car is accelerating on a straight road from rest to 180 kilometers per hour in 25 seconds. Assuming uniform acceleration, find the distance covered in this time. It's an easy question, students. सबको आना चाहिए. Sixth, seventh, eighth. Among the rest of the students, Alia, Amira, Anuj, Dishant, Janvi, Krish, Krishit, Mayank, Nilufar, Om, Paneri, Prachi, Rakshanda, Sakshi. Are you there, Sakshi? Sakshi, are you there? Sakshi, if you don't unmute, I'm going to remove you from the lectures. Tanya, Tejas, Vishal, Yash. Sakshi Mandal. See, there are students who I'm asking them and they're not replying at all. That means they've just entered. And the parents are not saying anything to them. This is something ridiculous. Yes, Sakshi, bolo, Sakshi. Hello, sir. Sakshi, are you there? Yes. Sakshi, Yes, sir. क्या सो रहे हो तुम? No, sir. I am here. Hello. इतने तो सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें करेक्ट मिले थे, तो अभी क्यों ऐसे कर रहे हो? अभी 6 का आंसर दो मुझे जल्दी से. चलो बताओ साक्षी. पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 6. Read the question fast. Sakshi. Just a second. Just. लप्ती, तू है क्या चीज यार? यू आर गेटिंग सो फास्ट. कशिश, लप्ती को आ गया आंसर. तो सर आप आंसर पूछ ही नहीं रहे हो. अब मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे मैंने पूछा ही नहीं था. अरे नहीं, लेकिन एक मैं समझा कि तू पोस्ट करिए. पहले तूने पोस्ट किया था ना, इसलिए है. शाम ने भी सर आंसर दिया देखा. वो तो डिस्कनेक्ट हो गया. शाम ने भी आंसर दे दिया. आजकल कशिश को हो क्या गया है? अच्छा, भी कशिश ने आंसर दिया. सर आंसर मेरा कब से रेडी था. Okay, fine. Okay, who wants to explain out of these three? Kashish, Labdi, and Shyam. Who wants to explain? Shyam, बता सकते हो तुम? यस सर. हाँ बोलो. सर पहले ना हम लोग को अपना इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है. बोला था कि रेस्ट पे तो 0 है वो. Absolutely correct. बाद में हम लोग को फाइनल वेलोसिटी दिया है 180 किलोमीटर पर आवर. Okay, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है? यस सर. तो कितना होगा? 1000 और 5/8 से भी कर सकते हैं. 18 तो क्या होगा? 50 मीटर पर सेकंड. हाँ यस सर, 50 मीटर पर सेकेंड. बाद में हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे. v इज इक्वल टू u प्लस AT. लेकिन हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t कर देंगे. तो आंसर 2 आएगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम. हाँ, तो तुम क्या करोगे? सर तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Okay, that is using the formula of v is equal to u plus AT. यस सर. यस यस. Okay, लेकिन तुम्हें टाइम तो नहीं दिया है.
सर टाइम तो दिया है ना 25 सेकेंड्स. Yes, time is given to your students 25 seconds. Agreed? So ये है 0. Initial, final velocity is how much? 50. Initial is 0 plus 25 into t. So how much is the time you're getting it? 2 seconds? यस सर. सर 1 सेकेंड सर. सर हम लोग को एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड मिला है, टाइम नहीं. Oh, very good. Sorry. तुम्हें क्या दिया है? 25 seconds. Assuming find the acceleration. Acceleration पूछा है students तुम्हें. हाँ So, सर, एक्सेलरेशन पूछा है. तो acceleration तुम्हें मिलेगा. Yes, acceleration मिला students. How much is the acceleration you're getting it as? 2 मीटर पर सेकेंड. Absolutely correct. Students, ये 25 into a होगा, please. तो acceleration is 2 meter per second square. अभी तुम क्या करोगे? सर अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वेरी गुड. तो s is equal to ut plus half at square. लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इनटू व्हाट्स द एक्सेलरेशन टू टाइम कितना है? 25 स्क्वायर. तो व्हाट्स योर आंसर? 625 मीटर. एग्रीड? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? साक्षी, क्या क्लियर है तुम्हें ये? यस सर, मैंने आंसर भी दे दिया. अरे बाप रे, वेरी गुड. लवदी, कशिश, साक्षी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स. हाँ, उसको सारे आंसर्स करेक्ट आते हैं. आज मुझे पता चला, मुझे बताया गया टीपी भाटिया में कि ये लड़की भी सारे आंसर्स देती है, लेकिन वो बोलती नहीं है, अपना बुक में सॉल्व करके रख देती है. कशिश, विनोद सर हम मिले थे सेंटर पर. अच्छा, गुड. ओके, now please go ahead with the 7th one and the 8th one. Can I erase this, students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? यस सर. Okay, please, rest of them, please go for it. Yash, Om, Dhruv, solve करो. Now please solve both the questions. 7th and 8th दोनों साथ में solve करो, and one who finishes off, let me know about it.
Very good, Sakshi. Sakshi has given the answer for the 8th one also. Dhruv has given the answer. Yes, anybody? Very good. Lapti has also put forward the 7th one. Kashish has put forward the 8th one. Okay. Anyone who can give both the 7th answers? one also. Yeah. Okay. 7th one आगे. I told you earlier, na 7th one also. Okay. Very good. जो कोई बता सकता है, चलो बोलो. Kashish 7th one बोलो. कैसे करोगे? So sir, your initial velocity is given 126 kilometer per hour. So we can convert it into meter per second. So it is 35 meter per second. Okay. Now, So the final velocity is 0. okay, the body is brought to rest. So final velocity is 0 meter per second. Okay. So sir, displacement is 200 meter. Okay. Displacement S. is given as how much? S is given as 200 meter. Yes, sir. So we will apply the equation here. V square minus U square equals to 2AS. Very good. So v square minus u square upon 2 into s is equal to the acceleration. तो सॉल्व करने के बाद में ये तुम्हें कितना मिलेगा? 0 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200. तो क्या तुम्हें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मिलेगा या नेगेटिव में मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा सर, माइनस 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन इज माइनस 3.06. यस सर. ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो रिटार्डेशन विल बी इन पॉजिटिव. और क्या पूछा उन्होंने? टाइम. सर, सो हियर वी विल यूज द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80. वेरी गुड. तो t क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन a, है ना? यस सर. तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया तुम्हें? 35 अपॉन एक्सेलरेशन कितना दिया है? माइनस 3.06. दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो टाइम किस में आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव में 11.4 सेकंड्स. Yes, absolutely correct. So that's the 7th question which is put forward by Ashish. 8th one कौन आंसर देना चाहता है स्टूडेंट्स? Who wants to answer for the 8th one? साक्षी चलो बोलो. 8th one. Sakshi, want to answer for the 8th one? Sir, I know the answer, but I can't explain it properly. Okay. Anybody else who wants to give the answer for the 8th one, students? Labdi, what about you? Sham, what about you? Dhruv, Dhruv. Chalo, Dhruv, bolo, 8th one, tum batao. A driver takes 0.2 seconds as a reaction time to apply brakes after he sees the need of it. If he drives the car at a speed of 54 kilometers per hour and the brakes causes uniform retardation of 6 meters per second square, find the distance traveled by the car after he sees to apply a brake.
तो इसको कैसे करोगे स्टूडेंट्स? If it drives a car at a speed of 54 kilometers per hour consistently, students, अगर सबसे पहले मुझे बताओ स्पीड 54 किलोमीटर पर Sir, आवर can I? हाँ बोलो। Sir, so your initial velocity is 15 meter per second. Very good. 15 meter per second. Sir, distance 1, which is s1, will be u into t. Very good. Why speed is equal to distance upon time? तुमने s is equal to u into t क्यों लिया? यहाँ पे काइनेमैटिक्स क्यों नहीं यूज किया तुमने? सर फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है। नहीं लेंदी हो जाता है ऐसे नहीं है माय डियर, लिखो ना ध्यान से देखो। A driver takes 0.2 seconds reaction time to apply brakes after he sees a need for it. If he's driving a car at a speed of 54, उसका मतलब स्टूडेंट्स ध्यान से सुना, यहाँ पे मैंने काइनेमैटिक्स क्यों यूज नहीं किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्यों लिया मैंने डायरेक्टली? क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कार कॉन्स्टेंटली 54 किलोमीटर से जा रहा था और उसका रिएक्शन टाइम था ब्रेक लगाने का वाज गिवन टू यू, तो उसके पहले उसका स्पीड कांस्टेंट था। स्टूडेंट्स अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी वहां पे काइनेमैटिक्स नहीं यूज होता है जब स्पीड कांस्टेंट होता है। काइनेमैटिक्स इक्वेशन कभी यूज होता है मालूम है? ईदर व्हेन द मोशन इज एक्सेलरेटेड और मोशन इज रिटार्डेड। स्टूडेंट्स अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो तो जब ये तीनों इक्वेशन हम लोग ने डिराइव किया था तो मैंने हेडिंग क्या लिखा था? कुछ याद आ रहा है? हेडिंग क्या लिखा था? Derive the three linear kinematic equation for a body moving with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी कम होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इंक्रीजिंग और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन डिक्रीजिंग। नेगेटिव पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया? 15, टाइम कितना दिया? 0.2। तो क्या आंसर आएगा? 3 meters. 3 मीटर। उसके बाद तुम क्या करोगे? नाउ व्हाट Sir, यू डू? sir, now we will calculate when the brakes are applied. So when the brakes are applied, initial velocity is 15 meter per second. Final velocity is 0. Yes, and which equation? U square equals to U square plus 2as. Absolutely correct. ये 0 हो जाएगा। इनिशियल कितना है? 15 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया। Sir, acceleration दिया तो लेकिन है एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन -6 सॉरी -6. हाँ. तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए स्टूडेंट्स। Yes sir. एक्सेलरेशन रिटार्डेड है ना तुम्हारा, मोशन इज रिटार्डेड, तो एक्सेलरेशन कितना दिया है? -6. -6 रिटार्डिंग दिया स्टूडेंट्स। तो नाउ कैन यू सॉल्व इट? ये देखो 15 स्क्वायर will be 225 divided by 12. So what's my answer students? क्या आंसर आ रहा है? 18.75 meter. 18.75 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Students, is this question clear to all of you all the students inside the group? Yes, sir. Yash, what about you? Vishal, Yash? I need to speak to your parents, it seems like that. Tejas, Sanya, Prachi, Paneri, Om, Nilufar, Mayank. Labdi said it yes. Janvi, Dishant, Alia, Amira, Anju. कोई रिप्लाई नहीं करता है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है क्या कर रही है सारे स्टूडेंट्स। सर ऑफलाइन लेक्चर कब से चालू होगा? ऑफलाइन क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन लेक्चर कब से चालू होगा? ऑफलाइन तो तुम्हारा हो ही रहा है ना, मैंने तुम्हारे साथ में लेक्चर लिया है ना। हाँ सर वो एक ही लिया था, वो भी कब का? हाँ तो लास्ट टू होगा लास्ट होगा वीक. होगा होगा वेरी सून होगा, डोंट वरी सर, डोंट वरी। यार हाँ आपने बोला कि नेक्स्ट वीक से सब लेक्चर्स ऑफलाइन हो गए। किसने इज बोला? इट सीआरएम? सीआरएम सर ने बोला है। हाँ ओके सो मे बी माइट बी वेरी सून होगा, डेफिनेटली होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके
Okay, now students, I want to solve question number 9, question number 10, and question number 11, students. 9th, 10th, and 11th, all three right now. Let's see who can get the answer for it. ये erase कर दो students, ये दोनों erase कर दो 7th और 8th. Please do it faster. 9th, 10th, and 11th students. और मुझे correct चाहिए students, okay? 9th, 10th, and 11th, all three questions I want correct. A body moving with uniform acceleration covers 20 meters in 7th second, 24 meters in 9th second of its motion. Find the distance it will cover in 15th second of its motion. बहुत ही easy है. Anyone who can give me the answer for the 9th one first? चलो. So not sure, but it's 36 meter. Yes sir, 36 मीटर. मैंने आंसर 36 दिया मीटर. सर, आप देखते ही नहीं हो. अच्छा मैंने किया. ओह शिट. मैं क्या कहता हूँ ना ये अरे यार साक्षी ने आंसर दे ही दिया था पहले ही. साक्षी ने आंसर दे दिया यार. सबसे पहले साक्षी ने आंसर दे दिया. Kashish, you have to be now. Sakshi is answering. साक्षी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बता सकते हो यहाँ पे? 9th के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? साक्षी, are you there? यस सर, ये माइक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. वेट. हाँ बोलो. कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे 9th के लिए? 9th के लिए? हाँ तुम्हें आंसर मिल गया ना 9th का? हाँ. कौन सा फॉर्मूला यूज किया तुमने? हेलो. क्या बोलो? You. Hello. Am I audible? Yes, audible. U plus A upon 2 into 7. Absolutely correct. Students, देखो displacement during 10 seconds of the motion.
उसने कौन सा फॉर्मूला बोला मालूम है? u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1। स्टूडेंट्स ये लो या इंटू ब्रैकेट n माइनस हाफ लो, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले दो कंडीशंस दी है, जिसको नहीं मिला प्लीज एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 20 meters in 7 seconds। स्टूडेंट्स तो s7 is 20 meter when n is equal to 7। I get? और फिर बोला है and 24 meters in 9 seconds of its motion। s9 is equal to 24 meter when n is equal to 9। Agreed? तुम्हें पूछा क्या है स्टूडेंट्स? तुम्हें पूछा क्या है? फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकंड। यानी तुम्हें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकंड ऑफ इट्स मोशन वेयर n इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन n में पूछा है स्टूडेंट्स। अभी ये है तो फॉर्मूला तो ये यूज करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हें u और a चाहिए। जो तुम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो मिलेगा। एग्री स्टूडेंट्स? तो पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 7 सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 7 माइनस 1, और ये तुम्हारा 20 मीटर्स होगा। स्टूडेंट्स ये पहला इक्वेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 9 सेकंड ऑफ इट्स मोशन विल बी u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट 9 2s are 18 minus 1। स्टूडेंट्स ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। यहाँ पे तुम्हें s9 को 24 लेना है। ये दोनों इक्वेशंस को तुम रेशियो लो, साइमल्टेनियस लो, जो भी करना है करो। मुझे u की वैल्यू चाहिए और मुझे a की वैल्यू चाहिए। क्या ये क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. फिर ये u और ये इसके लिए डाल दो। नाउ व्हाट आई वांट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 15 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो 15 सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट पुट n as 15, तो 2 इंटू 15 माइनस 1। Did I get u from this equations? Yes. Did I get a? Substitute over here and get the answer. समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वेरी गुड लब्धी, वेरी गुड कशिश। नहीं कशिश तो थी नहीं, लब्धी एंड who else? सर दिया तो था मैंने आंसर। नहीं दिया माय डियर। सर दिया मैंने, माइक ऑन करके दिया। साक्षी ने दिया आंसर ना? सर मैंने बोला, उसके बाद साक्षी ने बोला कि उसने टेक्स्ट किया है आपको। अच्छा आई थॉट साक्षी बोल रही थी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। देखो साक्षी, आशीष देखो पूरा क्रेडिट लेके चली गई। एवरीथिंग शी गिव एन आंसर। It's okay अगर वो भी आंसर्स दे Get me the दिया। answer. No, it doesn't matter. You give me the answer for U and A. Please, all of you, get me the answer for U and A and substitute back over here. सर u is 7 meter per second। क्या बात है, वेरी गुड। और A का वैल्यू कितना होगा? 2 meter per second square। Excellent, excellent. U is equal to 7 meter per second and A is equal to how much? 2 meter per second. और तुमने कैसे सॉल्व किया ये दोनों को? क्या किया तुमने? साइमल्टेनियसली सॉल्व किया? हाँ सर, वो 9th में सिखाया था ना लीनियर इक्वेशन वाला। एक्स और वाई के अंदर आते थे फिर तुम सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली, यस है सर। ना? वेरी गुड, वेरी सही जा रहे हो। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी मैथ्स सही जाएगा ना स्टूडेंट्स, टेक इट फ्रॉम मी, तुम्हें फिजिक्स आएगा। मैथ्स की वजह से कोई स्टूडेंट्स फिजिक्स में दे डोंट मूव अहेड, यू नो दैट। अभी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे भी, ये क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि शायद ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, लेकिन वो फॉर्मूला लिख के फिर छोड़ देंगे, फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, इसके लिए भी ये फॉर्मूला। लेकिन अभी आगे बढ़े कैसे? वो मैथ्स आ जाता है ना स्टूडेंट्स। ये तो ना, ये फॉर्मूला अगर मैं लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया, इसके बाद में मैं करूँ कैसे? तो वो मैथ्स पे चला जाता है। अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं होगा ना सही स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स भी स्कोर नहीं कर सकोगे। जिस स्टूडेंट्स को ये दो फॉर्मूला तक यहाँ तक आया सही तरीके से, प्लीज स्टूडेंट्स यू नो फिजिक्स, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे फिजिक्स आता है।
मैथ्स की वजह से मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो ध्यान में रखो स्टूडेंट्स। ऑलवेज ट्राई टू बी गुड इन मैथ्स ऑल्सो, अगर तुम्हें फिजिक्स की प्रॉब्लम सही जाना है तो। Okay, those who are done with the 9th one, please go with the 10th and the 11th one. Fast, come on. आज एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, we have to move further ahead. फटाफट। Can I erase this? इसको erase कर दूं स्टूडेंट्स मैं? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। लवली अभी तुम आंसर दो, तुम 2-3 क्वेश्चन से आंसर नहीं दे रहे हो। साक्षी और कशिश और ध्रुव ये 3 आंसर दे रहे हैं। श्याम भी आंसर नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब तो ये 5 ही आंसर दे रहा है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यार, आई वांट मैक्सिमम स्टूडेंट्स। वेरी गुड साक्षी, साक्षी ने पोस्ट भी कर दिया। लवली, क्या बात है यार, एक के बाद एक स्टूडेंट्स है कैसे? ऐसा लग रहा है there is a strong internal fight going on between them. अंदर ही अंदर एक जबरदस्त it's going on, a war going on. सर क्वेश्चन सेम है, हाँ क्वेश्चन बहुत सेम है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। I'm happy that there is a lot of fighting spirit going on between you all. I'm so happy with you all. Good. ये ऐसे ही इनिशिएटिव रहना चाहिए स्टूडेंट्स, तो स्कोरिंग बढ़ता है और मजा आता है पढ़ने में। वेरी गुड श्याम। श्याम 136 आएगा माय डियर, 136 आएगा। कशिश ने भी आंसर दे दिया है, लवती ने तो आंसर दिया ही है। सर मैंने 9th का दिया है सर, मेरा बाकी था। हाँ लेकिन 9th का आंसर, अच्छा 9th का आंसर तेरा बराबर, 9th का आंसर बराबर। ओके ओके फाइन, मैं 10th के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। और ये भी देखो स्टूडेंट्स, अभी भी हाफ एन आवर बाकी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच वर देयर इन द क्लासरूम, दे वर अराउंड 25 to 26. Now see there are 8 students are awake. This is the problem with studies. अभी बेचारा ओम बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। It's like that. Yes, anybody can give me the 10th answer, students? बोलो। A body moving with uniform acceleration covers 12 meters in second and 20 meters in 4 seconds. उसका मतलब 12 is equal to u plus a into bracket in second. 2 minus half. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सा इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? 10th के लिए एसेंट इज इक्वल टू u प्लस a into bracket n minus half, ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये पहला इक्वेशन। फिर उन्होंने बोला है and 24 meters in 9 seconds. I'm speaking about question number which one? Sorry, 10th one. Okay, so 10th one के लिए 12 meters in second and 20 meters in 4 seconds. So 20 is equal to u plus a into bracket in 4th second students. So 4 minus half. ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली 9th के जैसा ही ये क्वेश्चन है। तुम्हें 2 इक्वेशंस मिला तो तुम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तुम्हें u और a का आंसर मिलेगा। एग्रीड? ये तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जिसको नहीं आ रहा प्लीज सॉल्व करना।
यू आर ए। उसके बाद में उन्होंने क्या पूछा, मतलब स्टूडेंट्स फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 15th सॉरी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। सुन ध्यान से सुना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। कोई मुझे बता सकता है क्या पूछा गया है? हाउ मच द डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 seconds आफ्टर द 5th सेकंड? Sir, the total distance is S9, so it is asking S9 minus S5. क्या बात है स्टूडेंट्स, अभी देखो ये इंग्लिश यहाँ पे आया। लवदी, दिस इज इंग्लिश, रीड द स्टेटमेंट प्लीज। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या पूछा गया है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 seconds, यानी टोटल टाइम कितना दिया, 4 सेकंड दिया है, लेकिन क्या पूछा है आफ्टर द 5th सेकंड। आफ्टर द 5th सेकंड, आफ्टर द 5th सेकंड कहने से दिस इज माय 1 सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड, 4th सेकंड, यानी यहां तक मुझे पूछा, यानी मुझे पूछा है S9 माइनस S5, यानी मुझे पूछा है डेल्टा S। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। अभी S9 का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। टाइम कितना लोगे यहाँ पे, 9 सेकेंड्स लोगे, है ना, टाइम को 9 सेकेंड्स लोगे स्टूडेंट्स, माइनस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टाइम को कितना लोगे, 5 सेकेंड्स। क्या U और A तुम्हें पता है? Do you know U and A? Yes, you'll get U and A from these two equations. Solve the two equations simultaneously. Students, have you understood the 10th question? Find out the distance covered in 4 seconds after 5th second. After 5th second, तो this is your 4 seconds के लिए चाहिए। तो पहला सेकंड ये हुआ, दूसरा सेकंड ये हुआ, तीसरा सेकंड ये हुआ, चौथा सेकंड पे तुम 9 सेकंड पे पहुंच गए, है ना। तो S9 माइनस S5 पूछा है। ध्यान से प्रॉब्लम को रीड करो स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो बंदा प्रॉब्लम को बहुत ही कंसंट्रेशन से रीड करता है ना, वो क्रैक कर सकता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, एंड मैथ्स में भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। प्लीज गेट मी द आंसर ऑफ U and A एंड देन गेट मी द आंसर, फाइनल आंसर ओवर हियर। U का आंसर कितना मिला स्टूडेंट्स जिसने सॉल्व किया, व्हाट एग्जैक्टली A you got it, and A कितना मिला तुम्हें? Sir, A is 4 and U is 6 4 what? Cockroaches, buffalo? meter per second square. Okay. और U? 6 meter per second. Very good. Distance covered in 9 seconds minus distance covered in 5 seconds. तो what is actually the distance covered in 9 seconds का आंसर कितना होगा? तुम्हें मिला होगा शायद 54 plus 162 minus 30 plus 50. टोटल आंसर कितना मिला तुम्हें? 136 मीटर मिला होगा। Agreed? Yes, sir. Very good. Please go ahead with the 11th one. It's a good question. 11th one भी बहुत अच्छा है. Please read English properly. Can I erase this students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Students? Okay, Labdi. Labdi, you are not speaking at all now. श्याम तुम्हें मिला? श्याम, ध्रुव? सर मुझे जस्ट एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी मिला जस्ट। ओके फाइन, लेकिन अभी पता चला कैसे सॉल्व करना है? मैंने इरेज कर दिया, लवदी ने बोला इरेज कर दो। चलेगा सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया।
ओके, लेकिन तुम्हें जब भी पता हो, तुम्हें चाहिए तो ऐसा बोलना चाहिए सर, डोंट इरेज। लवली बहुत स्मार्ट है। ओके सर। Question number 11, students. I'll just give you a hint, students, okay? An object is moving along the x-axis with uniform acceleration of 4 meter per second square. Students, a body set to move along x-axis. With uniform acceleration, so acceleration is constant. यानी students, velocity time graph ये होगा, acceleration time graph ये होगा, parallel. ये ध्यान में रखना students. Okay, so an object is moving along the x-axis with uniform acceleration of 4 meter per second square. So you can use your kinematics over here, students. At time t equal to 0, at time t equal to 0, x is equal to 5 meter. यानी ध्यान से सुनना students, x 5 मीटर है और उस टाइम पे किसी ने स्टॉप वॉच शुरू किया, लेकिन ये 0 सेकेंड दिखा रहा है। यानी स्टूडेंट्स ऑलरेडी मोशन हो चुका है, बॉडी मूव कर चुका है यहाँ से, लेकिन उसने 5 मीटर कवर किया और तुम ऑब्जर्वर हो, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमने स्टॉप वॉच से तुम्हारा टाइम देखा तो 0, यानी तुमने मोशन यहाँ से शुरू करवाया उसका। यानी the body was already in motion, we consider. It has covered a distance of 5 meters and 0 seconds, students. So what exactly they are trying to say? They are saying it that the body is along the x-axis, we consider. Okay, uniform acceleration at time t equal to 0, x is equal to 5 meters, and the velocity at that instant. इस टाइम पे velocity कितनी है students? 3 meter per second. यहाँ पे तुमने स्टॉप वॉच को शुरू करना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने क्या पूछा है? What will be the velocity and the position of the object at time t equal to 2 seconds? समझ आ रहा है? At time t equal to how much? 2 seconds. So 2 seconds में शायद body somewhat यहाँ पे हो सकता है। So you have to find out at the end of time t equal to 2 seconds, what will be the velocity and the position. यानी तुम्हें x पूछा है और तुम्हें v पूछा गया। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, देखो मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया तुम्हें। अभी तुम थोड़ा सा तुम्हारा conceptual way of approach डालो and you'll get the answer. Second क्या पूछा है? What will be the position of the object when it has a velocity of 5 meter per second? अभी देखो ये 3 मीटर पर सेकेंड है, मुझे ये नहीं पता 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे होगा। शायद यहाँ पे हो सकता है, 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 या इसके पीछे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो स्टूडेंट्स जब भी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तुम्हारा, सॉरी सेकंड पार्ट बी पार्ट करना है ना तुम्हें, ये तुम्हारा ए पार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा ए पार्ट का क्वेश्चन है। जब भी तुम बी सॉल्व करोगे तो ए का आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, फिर तुम जज करो कि ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कहाँ की तरफ है। सी कशिश हैज गिवन द आंसर। जैसे मैंने प्रॉब्लम कंप्लीट किया नहीं, कशिश ने आंसर दे दिया। So now what will be the position of the object when it has a velocity of 5 meter per second? So for B we consider when velocity is equal to 5 meter per second, what is the position? That's the second part of the answer. Come on, who wants to solve it? Sham is raising hand. Very सर good, मुझे Sham. सॉल्व नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है। अरे यार, हाँ बोलो शाम, पूछो। सर हम लोग ए को भी पहले फाइंड कर सकते हैं ना? इसको ए जो ए पार्ट है उसको पहले कर सकते हैं। हाँ, तो ए को ही पहले करना है तुम्हें ए को ही पहले करना है। एक्स और वी तुम निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालोगे बताओ? सर हम लोग को मालूम है कि जो इसके पहले टाइम 0 जब था तब हम लोग के पास जो वेलोसिटी दिया था वो 3 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे हम लोग को टाइम दिया है, और हम लोग बाद में इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे जिससे हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, बाद में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे उसका फॉर्मूला यूज करके। हाँ बरोबर है, चलो अभी करो, गेट द आंसर।
So how do you find out the velocity over here, students? Acceleration is given to us 4 meter per second square. So can I say V is equal to U plus 80 students? है ना? Initial velocity कितना है? 3. Acceleration कितना है? 4. टाइम कितने टाइम बाद में? 2 सेकेंड्स के बाद में. तो कितना होगा? 3 प्लस 8 कितना होगा? आ गया तुम्हारा आंसर, वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? हाँ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या ये फर्स्ट आंसर क्लियर हुआ वेलोसिटी? हाँ या ना? हाँ यस सर, क्लियर क्लियर. अभी अभी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? तो सिंपल s is equal to ut plus half at square. Agreed? What is the initial velocity is given to us 3 in how much time at the end of 2 seconds? Sir, Plus half. Yes. sir, we can use v square minus u square equals to 2as. अरे हाँ मेरी माँ, तुम यूज कर सकते हो ना. मैंने s को सब्जेक्ट बना दिया. दोनों यूज कर सकते हो, क्यों नहीं? एक्सेलरेशन कितना दिया है? हमें चाहिए एक्सेलरेशन गिवन टू बी 4. t स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 plus 6, 14 मीटर. यानी कहना चाहिए तुम्हारा पोजीशन x is equal to 14 मीटर आ गया. यानी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, प्लीज एवरीबॉडी थोड़ा होल्ड करो, एवरीबॉडी होल्ड. जिसको नहीं समझ में आता है ये भी ध्यान में रखो स्टूडेंट्स. कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई कार है जो x is equal to 0 से शुरू हो चुकी है. उसने ऑलरेडी 5 मीटर कवर कर दिया है. उस टाइम पे उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड. कार का जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो 3 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है. और तुम बाहर की तरफ खड़े हो, तुमने देखा अपना स्टॉपर, तुमने 0 सेकेंड्स बताया. तुमने बोला कि भाई 0 सेकेंड में कार ने अपने ओरिजिनल पोजीशन से 5 मीटर कवर कर दिया. उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन टाइम में 0 ले रहा हूँ. यानी मोशन को तुमने यहाँ से डिफाइन करना शुरू कर दिया. फिर एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो 2 सेकंड के बाद में अगर वहां पे पहुंचता है तो वहां पे एक ऑब्जर्वर होगा. उस ऑब्जर्वर ने बोला भाई कि अभी दोनों ने स्टॉप वॉच एक साथ में शुरू किया था, लेकिन 2 सेकंड के बाद में अभी उसका पोजीशन क्या है? 14 मीटर्स. एग्रीड? v कितना है? 11 मीटर्स पर सेकंड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आर यू क्लियर विद दिस? Sir, हाँ बोलो. सर हमें पोजीशन x5 पे ढूंढनी है तो 19 मीटर आएगा ना? किसका? अब 0 से लोगे तो 19 नहीं आएगा ना. 14 प्लस 5 अगर यहाँ से ढूंढना है तो, ओरिजिन से ढूंढना है तो. एग्रीड? ना तुम्हें क्या पूछा है? फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. तो क्या यूज करोगे? अभी तुम्हारा इक्वेशन यूज कर लेते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यानी 2x. आई गेटिंग स्टूडेंट्स? v कितना होगा? 5 स्क्वायर. u कितना होगा स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली u विल बी? 3 स्क्वायर plus 2 into what is the acceleration given to you students? 4 मीटर पर सेकंड. 4 into x आ गया तुम्हारा. So can I say 25 minus 9 divided by 8 is equal to x? What is 25 minus 9 students? 16. What is the answer? 2 मीटर. Agreed? यानी यहां से एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ये डिस्टेंस 2 मीटर है स्टूडेंट्स. तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर. 2 मीटर प्लस 5 मीटर. क्या ये क्लियर हुआ? ये 2 मीटर है, यहां से यहाँ पे 5 मीटर है, तो ओरिजिन से यहाँ पे कितना हुआ? 7 मीटर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? यस सर. Please, am I teaching only Shyam? Labdi? हाँ Labdi, am I teaching only Shyam? No, sir. Yes. तो फिर are you understanding or not?
Yes, sir. तो फिर रिप्लाई तो करो। ध्रुव, व्हाट अबाउट यू ध्रुव? आर यू अंडरस्टैंडिंग ध्रुव? दिशांत? Yes, sir. कशिश? Yes, sir. साक्षी? यश? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। प्लीज अभी ध्यान से सुनना। तो देखो पहले यहाँ से शुरू करोगे। अगर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कितना होगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा मानो स्टूडेंट्स? यहाँ से अगर मैं देखूंगा ना तो यहाँ से ये है 14, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 14 + 5, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 19 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये टोटल डिस्टेंस 19, यानी ये 19 आई गेट, ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 7। इट्स लाइक दैट। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? Hope the question is clear to all of you all. Yes. Okay. Now the last question, students, 12th one. Chalo, koi 12th solve kar sakta hai, students? The last question. Okay. Yes, sir, I'm done. Tomorrow you have your exams also. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 12th वाला हो गया? अरे क्या बात है, who's this? लब्धी होगी। साक्षी है। साक्षी, वेरी गुड। साक्षी बोलो, कैसे करोगे 12th वाला? 67.7 आएगा उसका आंसर। हाँ लेकिन कैसे सॉल्व करोगे वो मुझे चाहिए। साक्षी बता सकते हो? Yes, come on fast. Sakshi, come on, answer. Waiting for you. सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो ठीक से एक्सप्लेन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है एक्सप्लेन? इक्वेशन ही तो बोलना है तुम्हें बस। हाँ पर वो ना मैं एक्सप्लेन करते टाइम फिर खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके। Sir, can I? Sir. हाँ ये तो कशिश ही है, कशिश ही आंसर देने वाली है। ओके लेट मी रीड पहले। कशिश, लेट मी रीड द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व इट। ओके अभी ध्यान Okay, से sir. 12th वाला देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ऑन अ फॉगी डे, ध्यान से सुना, फॉगी डे का मतलब कि धुम्मस। ओके धुम्मस होता है स्टूडेंट्स, एक फॉग का कंडीशन होता है। तो दो ट्रेन आमने सामने होती है, तो दो ड्राइवर्स हैं जो ट्रेन में है और दोनों ट्रेन आमने सामने है स्टूडेंट्स। द टू ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम रेलवे ट्रैक स्पॉट ईच अदर, यानी एक ही ट्रैक पे ऑल ऑफ अ सडन दो ट्रेन एक सामने सामने आ गई स्टूडेंट्स। ये देखो ये तुम्हारा एक ट्रैक है पूरा, एग्री? यहाँ पे तुम्हारी एक ट्रेन है, ओके, और यहाँ पे एक तुम्हारी ट्रेन है स्टूडेंट्स। दोनों आमने सामने आ गई है और वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि फॉग है। I getting it? There is a fog over here. दोनों आमने सामने है। Let us take the two trains to be as train 1, I getting it, and train 2. Okay, so students, the two trains are in the opposite direction on the same railway track. दोनों एक ही ट्रैक पे है students. Both these trains are on same tracks. ये ध्यान में रखना students. Okay, they spot each other when they are 80 meters apart. दोनों के ड्राइवर ने ट्रेन को देख लिया, लेकिन दोनों 80 मीटर दूरी पे है। ओके, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 72, यानी V1 की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और V2 की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ट्रेन आमने सामने हैं, दोनों के ड्राइवर ने एक दूसरे को देख लिया और बीच में क्लाउड है, क्लाउड फैक्टर है स्टूडेंट्स, तो डोंट यू थिंक सो कि वो ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे? हाँ, इन ऑर्डर टू अवर्ट कोलिजन। समझ में आ रहा है? तो उनकी जो वेलोसिटी है ना, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी पहले की। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है हेड ऑन कोलिजन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसको तुम कैसे करोगे?
तो ये कितना होगा? तो सर ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होगा? 60 इंटू 5/18, है ना? ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना क्लियर हुआ? साक्षी, इज इट क्लियर? कशिश, इज क्लियर? क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर। अभी उन्होंने Yes, क्या sir. पूछा स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या पूछा स्टूडेंट्स? बोथ अप्लाई ब्रेक साइमल्टेनियसली, यानी सपोज एक सर्टेन इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे इसने और एक पॉइंट पे इसने ब्रेक्स लगाना शुरू कर दिया। दोनों ने ब्रेक्स लगाना शुरू, लेकिन ब्रेक्स लगाने से मोशन रिटार्डेड हुआ, यानी ये ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये ट्रेन ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, एंड फाइनली both the trains were brought to rest. Determine the distance which the collision is averted. दोनों का जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, दोनों का जो एक्सेलरेशन है, जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ मच? द एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ट्रेन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन तो पॉजिटिव होगा। दोनों ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। कुछ टाइम के बाद में ये ट्रेन यहाँ पे आती है, ये ट्रेन यहाँ पे आ जाती है, और वो दोनों ट्रेन स्टॉप हो जाते हैं। अगर दोनों ट्रेन स्टॉप हो जाते हैं तो उन्होंने पूछा है क्या डिस्टेंस की दूरी पे वो दोनों रुक जाते हैं? हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या डिस्टेंस की दूरी पे वो दोनों ट्रेन रुक जाते हैं, यानी ये पूछा है तुम्हें। अभी समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So now what exactly a student will do? कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी फिजिक्स में वाइज होगा ना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, वो सोचेगा सर इसका u1 दिया है, ध्यान से देखना, सर इसका v1 पता है, इसका एक्सेलरेशन दिया है, क्यों ना मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूं s1? अरे हाँ सर, फॉर्मूला होगा v² = u² + 2a s1। उससे मुझे क्या मिलेगा? ये डिस्टेंस मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, u2 आंसर मालूम है, v2 आंसर मालूम है, एक्सेलरेशन आंसर मालूम है, क्या मैं ये डिस्टेंस का s2 फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्यों नहीं? v2² = u2² + 2a s2। अरे सर प्रॉब्लम तो इजी हो गया, सर प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। आपने यहाँ से यहाँ पे s1 निकाल दिया, यहाँ पे s2 निकाल दिया, उसका मतलब दोनों ट्रेन पहले 80 मीटर दूरी पे थे। आपने अभी s1 निकाल दिया और यहाँ से आपने s2 निकाल दिया, तो कहना से 80 में से अगर मैं s1 और s2 का आंसर सबट्रैक्ट कर दूं, 80 में से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दूं, तो कैन आई गेट दिस डिस्टेंस? हाँ स्टूडेंट्स, कैन आई गेट दिस डिस्टेंस? Yes, sir. और ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? पूरा प्रॉब्लम डायग्राम के हिसाब से देखो मैंने कैसे किया, और ये डे टू डे लाइफ में होता है, ऐसा होता है। एक्चुअल फैक्ट्स में कभी कभार ट्रेन का कोलिजन होता है। यानी सोचो स्टूडेंट्स, ट्रेन के ड्राइवर्स को भी फिजिक्स आता है, उनको सॉल्व करने बोलेगा तो वो भी सॉल्व कर देंगे, और ये टेक्निकली देखो कितना सही जा रहा है। अरे हाँ सर, ऐसा तो होता है नेचर में, और आपने परफेक्ट निकाल दिया। ये डिस्टेंस ये तो एकदम इजी था, इनिशियल वेलोसिटी है, ब्रेक्स लगाओ तो रेस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे माइनस में डालना है। और देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यू तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी तो 0² हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी सर आपने बता दिया 20² + 2 इंटू सर यहाँ पे एक्सेलरेशन तो -5 लिखूंगा, क्या मुझे s1 मिलेगा? हाँ सर मिल सकता है। देखो ना यहाँ पे भी क्या होगा सर, 0² होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर, 50/3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, + 2 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन -5। कैन आई गेट माय s2? व्हाई नॉट? यहाँ पे s1 s2 जो मिलेगा वो यहाँ पे डाल दो, फिर 80 में से सबट्रैक्ट कर दो। Now, did anybody get the answer for this?
Sir, S1 is 40 meter, And S2 is 27.7 meter, okay 27 meter, वेरी गुड। और दोनों को 80 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 12.22, 12.22 12.3 के 22. आसपास। 7 3 10 आएगा ना, 3 आएगा ना, ये 67.7 होगा ना, Yes, sir. तो 3 में आंसर आएगा तुम्हारा। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको 12th प्रॉब्लम? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर। प्लीज मुझे Yes, मत sir. सुनाओ यार, ये रॉकेट साइंस नहीं था। तुम सच्ची बोल रहे हो ना, टीचरों को रुलाते हो तुम लोग। इतना एकदम शांति से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी इन चैप्टर्स के सारे प्रॉब्लम्स किए तुम्हारे साथ में, एक भी प्रॉब्लम मिस नहीं करवाया मैंने। फिर भी अगर तुम स्कोर नहीं करते हो, या तुम्हें लो कॉन्फिडेंस होता है, या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं आता, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यानी तुम्हारा प्रैक्टिस वर्क बहुत कम है स्टूडेंट्स। और इसको ऐसी तरह से सोचोगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये रॉकेट साइंस नहीं था। और अपने आप करना शुरू करो स्टूडेंट्स, rather than depending on to anybody. Okay? Next lecture will be continuing further. Okay, students? Chalo, wish you all the best for tomorrow exams. Okay? Thank you, sir. मार्क्स लेके आना। और Thank फिजिक्स you, की sir. जब भी टेस्ट हो गए, फिजिक्स की जब भी टेस्ट होगी, फुल मार्क्स लेके आना। ट्राई करना फुल मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स? सर टेस्ट का नहीं पता, लेकिन बट टाइम टेबल में 8 to 9 डीपीटी दिया है, तो डीपीटी का मतलब क्या हुआ सर? डेली प्रैक्टिस टेस्ट, फुल फॉर्म डेली प्रैक्टिस टेस्ट। तो वो कैसे, मतलब क्या उसका? वो तुम्हें शायद 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस का वो देंगे, और वो तुम्हें सबमिट करना है। प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको टाइम लिमिट देंगे वो। ओके गेटिंग सर। इट? 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे देंगे, और वो तुम्हें वो टॉपिक वाइज होगा, और वो तुम्हें सॉल्व करके भेज देना है करके। गेटिंग इट? ओके सर। और उसमें भी स्कोर करना है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, चलो सी यू। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir.